Hello everyone, welcome back to Kaushal Bio Prep. In today's video lecture, we are going to cover another topic that is the trout culture. So first of all, we'll understand what is trout actually. So trout are basically fishes. So they are member of the family that is Salmonidae, and they are cold water fishes. And first of all, they are very important for the food industry. Why? Because they are very high in protein content. So they are quite expensive also, and they are priced for their high protein content, and they are flavorful and attraction for sport fishing as well, right? But we just need to understand how people culture the trout. So what are the things that we need to understand for trout culture? So trout culture term describes the artificial growing and breeding of this trout. Usually it is done in the cold water aquaculture system and under regulated and semi controlled environmental condition. So you basically grow this fish under artificial conditions or natural conditions, but those conditions are controlled, and you are growing this fish for the production, and it will be used further in food industry, right? Now what are the common trout species that has been used in the culture? So there is rainbow trout, then there is brown trout and brook trout. So these are three common trout species. No doubt there are other species also, right? So rainbow trout is the Oncorhynchus micus species, and it is most widely cultured species of the trout, and it tolerates a wider range of the temperature, that is between 12 to 18 degrees Celsius, and it is a very fast growing species also, and it is a disease resistant species because there are many pathogenic bacteria, viruses that are present around the environment in the aquaculture environment, and this trout is basically resistant to a lot of diseases, not all but a lot of diseases. Then there is brown trout, which is Salmon truta is the name. This is native to Europe, and this is slow growing trout. So the growth rate is slow as compared to the rainbow trout, but it is used in the restocking programs, and it is native to Europe. Then there is brook trout, which is Selvenicus. Now this species is native to the North America, and it is less tolerant to high temperature. So in Indian aquaculture, you will commonly see this trout, that is the rainbow trout, right? Now growth conditions, if you see the ideal temperature range for growing the trout is 10 to 18 degrees Celsius. Then the habitat is cold, of course, because it is a cold water fish, and the water needs to be very clear. Well oxygenated water is required, and the amount of oxygen needs to be higher than the 5 mg per liter of the dissolved oxygen, and the pH requirement is 6.5 to 8.0. Now the diet, if you talk about the diet, it is a carnivorous animal which needs a diet which is high in protein, that is 40 to 50% of the diet of this fish is going to be protein only, right? Now let's talk about the trout culture in India, especially in J&K, because you are preparing for GKPSC, so we will be considering the J&K region especially. So the history of the trout culture in Kashmir is basically beginning from a very old time, from UK in 1899. So there is a batch of trout ova, that is the egg, around 10,000 eggs. They arrived from the UK, and that is like a courtesy of the Duke of the Bedford. ये तब की बात है जब colonial time था, ठीक है? So it is courtesy का मतलब हुआ कि it was like a gift, right? And the Kashmiri Maharaja basically presented an excellent Kashmiri stag trophy. So this is all history, but you need to understand that the history of the trout culture is very old. Around 1899 में ही जो trout हैं, they basically come in the Kashmir, right? लेकिन उस टाइम पे कल्चरिंग स्टार्ट नहीं हुआ था. फिर उसके बाद देर वॉज अ सेकेंड शिपमेंट विच वॉज विच अराइव्ड इन द लेटर ऑन अराउंड 1900s, राइट? उसके बाद जो है रेयरिंग जो है वो स्टार्ट हुई. वाई? बिकॉज उस टाइम पे जो थे द नंबर ऑफ द फ्राइज वर मोर, right? So rest 800 fries, they were reared in the premises of a private carpet factory owner, right? तो जो फिशेज़ आई थी, जैसे 1000 आए थे, तो उनको ट्रांसफ़र किया गया था, एंड देन उसमें से कुछ जो थे उसको रखा गया, उनको रेयर किया गया, एंड दैट्स हाउ द कल्चर बेसिकली बिगेंस. ऑल दिस यू कैन फाइंड इन द J&K फिशरीज वेबसाइट. दिस इज़ फ्रॉम देयर ओनली, राइट? सो ट्राउट फिशेज़ जो हैं वहाँ पे J&K में, दे आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमनली ग्रोन, एंड
ये जो कल्चर है वो भी वहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट बेसिस से भी इट इज़ फिजिबल, बिकॉज दे आर कोल्ड वाटर फिशेस, और JNK में जो टेम्परेचर है वो इसी रेंज में रहता है और इससे भी कम हो सकता है, तो दिस इज़ फिजिबल फॉर ट्राउट कल्चरिंग, राइट। सो ट्राउट कल्चर सबसे ज़्यादा बेसिकली किया भी वहीं पे जाता है। तो देर इज़ वन प्रोजेक्ट ऑल्सो जो ट्राउट फिश फार्मिंग का प्रोजेक्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ द ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, दैट इज़ एट द कोकरनाग अंडर द यूरोपियन यूनियन असिस्टेंट। ये स्टार्ट किया गया था, काफ़ी पहले की बात है ये। अभी भी इस टाइम पे भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो फार्म वो हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये चल रहे हैं, ठीक है ना। फ़िश फार्मिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन फिशेस को बेसिकली रेयर किया जाता है। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें हिस्ट्री में नहीं जाना, दिस वाज जस्ट टू गिव यू अ क्लू कि कैसे ट्राउट कल्चर जो है वो शुरू हुआ था JNK में। नाउ आर मेन टॉपिक इज़ दी कल्चर प्रैक्टिस, कैसे जो है ट्राउट कल्चर किया जाता है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो JNK में भी मैंने बताया आपको। अब वहाँ पे अब हम रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को अगर छोड़ दें तो देर इज़ दिस डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड डोडा, ठीक है, एंड दे हैव द वास्ट पोटेंशियल फॉर द कल्चर ऑफ द हाईली प्राइस फिश ट्राउट, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स भी हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर सम प्राइवेट फिश फार्म, देयर आर सम पब्लिक फिश फार्म्स, एंड द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दिस एरिया इज़ वेरी वेरी कॉन्जीनियल फॉर द कोल्ड वाटर एक्वा कल्चर, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर जो है उस रेंज में आपको मिलता है, ठीक है। और जो रिसेंट रिसर्च फाइंडिंग है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ट्राउट कैन बी कल्चर्ड एट अ लोअर एलिवेशन, इवन एट 1000 MSL। तो आप इतने एलिवेशन पे भी इसको कल्चर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, आपको ऑप्टिमम क्वालिटी जो है वाटर की और क्वांटिटी वाटर की वो इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द साइट सिलेक्शन। जब भी आप कोई फिश फार्म की बात करते हैं, अगर हम ट्राउट कल्चर करने वाले हैं, तो फर्स्ट थिंग इज़ कहाँ पे करेंगे। तो साइट में स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर। सो द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज़ अवेलेबल टू द साइट इज़ नीड्स टू बी चेक्ड वेरी वेरी केयरफुली, एंड यहाँ पे प्रॉपर पेरिनियल सोर्सेज से वाटर वहाँ पे आना चाहिए, स्प्रिंग, रिवर, राइट। मतलब आप किसकी बात करें, एनवायरमेंटल ही है कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज से ही जो वाटर है वो मिलता रहे, ठीक है। तो वो आपका ऐसा नहीं कि कुछ टाइम पे हो पानी, कभी ना हो, ऑलवेज होना चाहिए। देन पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, नो डाउट पॉन्ड कंस्ट्रक्शन वहाँ पे किया जाएगा। तो सीमेंटेड रेक्टेंगुलर टैंक या पॉन्ड्स बना सकते हो, विच आर बेसिकली गुड फॉर द कल्चर। नॉर्मली जो रेक्टेंगुलर टैंक्स है वो बनाए जाते हैं अगर आप रेयरिंग कर रहे हैं, और जहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए सर्कुलर टैंक्स का यूज़ किया जाता है। और जो इकोनॉमिकल साइज़ है ट्राउट रेसवे का, दैट शुड बी दिस मच, ठीक है। नाउ यहाँ पे जिस भी टैंक की हम बात करते हैं उसमें एक इनलेट सोर्स होता है जहाँ से फ्लो करेगा वाटर, देन देर इज़ एन आउटलेट, ठीक है। और बीच में एक फिश मैश नेटवर्क लगा होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको हापास में बता चुकी हूँ, समथिंग लाइक दैट, वैसा ही होगा। एक ड्रेन पाइप होती है, ठीक है, बॉटम में जो होगी, जो बेसिकली हार्वेस्टिंग में जो आपको हेल्प करेगी। देन देर इज़ वाटर सप्लाई। तो फार्म में जो टैंक्स है दे शुड बी सप्लाइड विद द फिल्टर बेड सेडिमेंटेशन वाटर कैनाल्स, ठीक है। तो वाटर कैनाल्स होंगी वहाँ पे जहाँ पे फिल्टर बेड्स लगे होंगे। बहुत सारे जो स्लिट की प्रॉब्लम है वो होती है ट्राउट कल्चर में, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स पहाड़ों की बात करें ना तो पानी में स्लिट तो होगा ही, सॉरी सिल्ट तो होगा ही। तो इसलिए जो ट्राउट कल्चर में है पर्टिकुलरली वहाँ पे जैसे मानसून के टाइम पे, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे वाटर जो है दैट इज टर्बिड, इट इज़ नॉट गुड फॉर द ट्राउट फार्मिंग। सो द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर मैटर्स अ लॉट फॉर ट्राउट कल्चर, राइट। सो इसीलिए ज़रूरी है कि जो फ्लो है वाटर का उसको केयरफुली मॉनिटर किया जाए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी कोट किया हुआ है, इफ़ देर आर 30,000 फ्राइज तो दे नीड वाटर फ्लो ऑफ अबाउट 15 लीटर पर मिनट, ठीक है, ऐसा फ्लो होना चाहिए। लेकिन अगर द फिश इज़ बिलो 250 ग्राम्स दैट विल नीड वाटर उससे कम, ठीक है, 0.5 लीटर पर केजी पर मिनट, ठीक है। और ये टेम्परेचर रेंज है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। देन देर आर सम फिजियो केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर इन ट्राउट फार्म ऑल्सो। तो उसमें आता है सबसे पहले टेम्परेचर, देन देर इज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन, देन देर इज़ pH, टर्बिडिटी एंड स्टॉकिंग डेंसिटी। सो इफ़ यू सी ओवर हेयर टेम्परेचर जो है अभी मैंने आपको बताया है पीछे कि अराउंड 18 डिग्री जो आपका मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, 12 से 18, पर 5 से 18 भी चलेगा, ओके। तो इसका क्या मतलब है, लोएस्ट है जो वो टॉलरेट कर सकती है और ये हाईएस्ट है, ठीक है। पर कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं विच कैन टॉलरेट अप टू 25 डिग्री, ठीक है, दिस इज़ डिग्री सेल्सियस। डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये ऑप्टिमम रेंज है उसकी 5.8 टू 9.5 mg पर लीटर। pH जो है वो न्यूट्रल ही होना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन हो सकता है, एंड दैट कुड बी बेस्ट फॉर द ट्राउट कल्चर, ठीक है। लेकिन ट्राउट कैन सर्वाइव फ्रॉम अ pH रेंज ऑफ दिस 4.5 टू 9.2, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन टर्बिडिटी की बात करें तो नॉर्मली यू नीड क्रिस्टल क्लियर वाटर विदाउट एनी कंटामिनेशन, ठीक है। टर्बिडिटी शुड नॉट बी मोर देन 25 सेंटीमीटर, तो क्लियर वाटर चाहिए आपको।
देन वी टॉक अबाउट द स्टॉकिंग डेंसिटी। तो स्टॉकिंग जो है इट इज़ रिलेटेड विद द वाटर सप्लाई, वाटर टेम्परेचर एंड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड द टाइप ऑफ द फीड ऑल्सो। तो if water temperature is above 20 डिग्री सेल्सियस तो स्टॉकिंग डेंसिटी शुड बी लेस देन रिकमेंडेड डेंसिटी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। एंड द फ्राई और फिंगरलिंग्स इफ दे आर 5 to 50 grams एंड दे आर स्टॉक्ड, दे आर बीइंग स्टॉक्ड, तो दे विल बी स्टॉक्ड एट द रेट 2 kg fish per cubic meter of the water surface. So these are some parameters which needs to be there, right? तो ये आपको मेंटेन करने पड़ेंगे स्टॉकिंग करते टाइम। देन देर इज़ फीड सप्लाई। तो फीडिंग की बात करें तो अराउंड 4 to 6% इज नेसेसरी इन फिंगरलिंग्स फॉर बेटर ग्रोथ, ठीक है, जो फीडिंग करेंगे आप। बट अगर आप देखें वाटर टेम्परेचर के हिसाब से तो फीडिंग का एक शेड्यूल होता है कि किस टाइम पे फीड उसको किया जाएगा। तो एट वाटर टेम्परेचर विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम 10 to 12 डिग्री सेल्सियस फीडिंग शेड्यूल इज 6% इज ऑप्टिमम, ठीक है। तो 6% फीड आप डालेंगे तो दैट इज़ गुड। लेकिन व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर और व्हेन द टेम्परेचर इज हायर 15 डिग्री है, then the feeding schedule is going to be lowered, that is around 4%, और beyond 90 डिग्री सेल्सियस जो है उसको लो किया जाएगा, और वो जो है इट शुड बी जस्ट 50% ऑफ द ऑप्टिमम शेड्यूल। तो ये क्या है, फीडिंग जो है दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर, ठीक है। तो फीडिंग जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है। नाउ ऑप्टिमम अगर हम ग्रोथ रेट इस फिश का देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 80 ग्राम्स, ठीक है, पर मंथ बता रहे हैं ये। फिर उसके बाद जब आपने ग्रो कर लिया देन देर इज़ हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इट बेसिकली हार्वेस्टिंग जो है वो तब की जाएगी आफ्टर गेनिंग द वेट ऑफ अराउंड 250 ग्राम्स, ऑलमोस्ट इतना तो होना ही चाहिए। इस साइज़ के बाद जो है ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो इसी साइज़ पे भी हार्वेस्ट कर सकते हो। इससे पहले अगर करोगे तो ग्रोथ आप लूज़ कर दोगे कुछ। 250 ग्राम्स के बाद इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, तो इस पे इसको लूज़ किया जाता है। और इसके बाद अगर आप रेयर कर भी रहे हो तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर मनी ऑफ कोर्स, ठीक है, बिकॉज the people who are actually doing the trout culture they are going to sell it further, right? Then there is finally hygiene. So cleanliness is very very important. I have told you again and again. Sedimentation जो है उस पर proper check होना चाहिए. Even water need to be crystal clear. Trout should be cleaned also. मतलब आपको fish को भी clean करना, उसको disinfect करना है. Disinfect करने के लिए you can use 10% formalin. Now this is something which can be asked in the exam. और you can use 4 पार्ट्स पर मिलियन KMNO4 सोल्यूशन, ठीक है। और ये पीरियोडिकली होगा, कुछ टाइम के बाद ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया तो डन, नो, यू हैव टू डू इट पीरियोडिकली, दैट डिपेंड्स, ठीक है। नाउ द इन्फेक्टेड फिश शुड बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द टैंक बिकॉज वन फिश विल रूइन द अदर्स, एंड उसके बाद आपको जो है बाकी फिशेस की भी टेक केयर करनी है, तो उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा सो दैट यू फाइंड आउट इफ देर इज़ अनदर इन्फेक्टेड फिश, तो कंटामिनेशन चांसेस आपके कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इन्फेक्टेड फिश मिलती भी है तो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए कोई एंटीबायोटिक देनी है तो आपको जो है फिशरी जो एक्सपर्ट है उनको कंसल्ट करना पड़ेगा रिगार्डिंग डिजीज इफ एनी काइंड ऑफ डिजीज इज देयर, राइट। सो दिस इज़ बेसिक अबाउट द ट्राउट कल्चर। सो आई विल टेल यू वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग द लेक्चर। अगर हम कार्प कल्चर की बात करें, मान ली ट्राउट कल्चर की बात करें, या हम प्रॉन कल्चर की बात करें, तो वन थिंग दैट स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम किस तरह से उसको पढ़ना होता है। देखो आपको ना बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब क्या है कि आप रेयरिंग कैसे करते हो, ठीक है। टेम्परेचर रेंज क्या रहता है तीनों के केस में, मान लो कि आप पढ़ रहे हो ट्राउट पढ़ रहे हो, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज, ठीक है। स्पीशीज़ का पता होना चाहिए, व्हाट स्पीसीज़, अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ किसी से एसोसिएटेड है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक, अगर कोई बहुत कॉमनली यूज़ होता है मान लो, उसके बारे में पता होना। जैसे कार्प के केसेस में मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के बताया कि हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, जब आप जो है स्पॉनिंग करवाते हैं तो उस टाइम पे हार्मोन्स वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर रेंज इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। pH इज़ इंपॉर्टेंट, फिर अगर कोई डिजीज़ मैनिफेस्टेशन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो दैट्स हाउ यू नीड, पर यू नीड टू क्लियर द बेसिक फर्स्ट। जैसे कार्प कल्चर व्हाट इज़ हापा, यहाँ पे ट्राउट की अगर हम बात करते हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वो फ्रेश वाटर फिश है। आज के लेक्चर से आपको ये तो क्लियर हो ही रहा है, क्रिस्टल क्लियर वाटर चाहिए उसको, क्या उसका टेम्परेचर रेंज है, क्या उसका pH रेंज है ना, और व्हाट आर दी कॉमन स्पीसीज दैट आर बीइंग रेड। सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन दैट यू नीड टू क्लियर। उसके बाद जो फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स के लिए यू ऑलवेज गो टू द बुक्स, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बुक से मिलेंगे, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं कि अगर जैसे मान लो J&K का पेपर आप दे रहे हो तो वहाँ के लिए जो कॉमन आप पढ़ रहे हो, कॉमन जर्नल नहीं पढ़ोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिशरीज़ की साइट चेक कर सकते हो, वहाँ पे कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऐड ऑन कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ करंट बेस्ड, राइट, कि J&K में क्या चल रहा है। बट जो बेसिक है वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो यू ऑलवेज ऐड फैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स इन टू योर नोट्स, ठीक है। इफ़ यू नीड अनदर
कुछ और ऐड करना चाहते हो आप लेक्चर्स में, तो डू कमेंट डाउन and do let me know, right? So if you understand something from the lecture, you can like the video. If you have any question, query, or even any kind of request for the lecture, please comment down and subscribe for more lectures if you are new to the channel. And one more thing, I'm going to start animal physiology very very soon. I have been seeing your comments, so there are a lot of people who want to cover the syllabus. No doubt the exam is very very close by, so I'll be starting the animal physiology very soon, right? So I am ending the lecture here. If you have any question or query, please feel free to comment it down. Thank you so much, and I will see you all in the next video lecture.